Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's our English literature turn. So students, today we will read English literature in our today's class. And students, today we are going to start a new chapter of our English literature book as we semester. And students, the number of this new chapter is chapter 5 and the name of this chapter 5 is The Real Santa Claus. Okay, so all students, please pay special attention class and listen to my words slowly because today we are going to read chapter 5 for Real Santa Claus, and included in chapter 5 for Real Santa Claus, we will read this poem, and after that we will read about the poet of this poem or Real Santa Claus, and then we will read and note down hard words and poem of this chapter 5 in our for English literature notebook in our today's class. Okay, so all students, let's see chapter 5 for Real Santa Claus. Okay, student, the name of this chapter 5 is Real Santa Claus. आमी से एक real it's mean वास्तविक या असली, Santa Claus it's mean Santa Claus. Okay, a real Santa Claus it's mean एक वास्तविक Santa Claus, or we can say also that एक असली Santa Claus. Okay, so student, included in chapter 5 for Real Santa Claus we will read about art and culture. Okay, तो कला और संस्कृति के बारे में हम लोग रीड करेंगे. ओके, सिस्टम टर्न पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस नेक्स्ट पेज. लेट्स रीड दिस पोम. डू यू ऑफन ड्रीम अबाउट समथिंग. ओके, ऑफन मीन्स टेंस होता है प्राय या अक्षर. ओके, अबाउट मीन्स बारे में, समथिंग मीन्स कुछ. ओके, या किसी के. डू यू ऑफन ड्रीम अबाउट समथिंग. डू यू ऑफन ड्रीम इट्स मीन क्या आप अक्सर सपने देखते. ओके, और वी कैन से आल्सो दैट क्या आप प्रायः सपने देखते. ड्रीम मीन्स होता है सपने. ओके, अबाउट समथिंग इट्स मीन किसी के बारे में. ओके, डू यू ऑफन ड्रीम अबाउट समथिंग इट्स मीन क्या आप अक्सर या क्या आप प्रायः किसी के बारे में सपने देखते हैं. ओके, नाउ लेट अस रीड अ पोम अबाउट द ड्रीम एंड डिज़ायर ऑफ अ यंग बॉय. ओके, नाउ मीन्स सब लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं. आ मीन्स एक, पोम मीन्स कविता, अबाउट मीन्स बारे में, द ड्रीम इट्स मीन सपना, एंड मीन्स और डिज़ायर इट्स मीन इच्छा, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, यंग बॉय इट्स मीन युवा लड़की. ओके, नाउ लेट अस रीड अ पोम अबाउट द ड्रीम एंड डिज़ायर ऑफ अ यंग बॉय. ओके, चलिए एक युवा लड़के के सपने और उसकी इच्छा के बारे में एक कविता पढ़ते हैं. ओके, चलिए एक युवा लड़के के सपने और इच्छा के बारे में एक कविता पढ़ते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पोम. Santa Claus, I hang for you by our chimney, stockings too, one for me and one to go to another boy I know. Okay, there's a chimney in the town you have never traveled on. Should you chance to enter there, you would find a room all bare. Not a stocking could you spare, matters not how you might try, and the shoes you would find are such as no one boy care for much. Okay, in a broken bed you would see someone just about like me, dreaming of the pretty toys which you bring to another boy, and to him a Christmas seems merry only in his dreams. Just turn your page forward and continue this poem. All he dreams then Santa Claus stuff his stocking with, because when it's filled up to the brim, I shall be Santa Claus to him. Okay, student, the poet of this poem is Frank Dempster Salmon. Okay, so student, now I'm going to explain the summary of this poem. Okay, student, let's see first number stanza of this poem. Okay, Santa Claus, I hang for you. Okay, Santa Claus it means Santa Claus, I means मैंने, hang it's mean टांग दिया है. Okay, एंड फॉर मीन्स के लिए, यू मीन्स आप. Santa Claus, I hang for you इट्स मीन Santa Claus, मैंने आपके लिए टांग दिया है. बाई अवर चिमेनी. ओके, स्टूडेंट, सेड मीन ऑफ चिमेनी दैट अ वर्टिकल ट्यूब यूज टू इमिट स्मोक. ओके, धुआं उत्सर्जित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक ऊर्ध्वाधर नली को हम लोग बोलते हैं चिमेनी. ओके, जो क्या करती है, स्मोक्स को, धुएं को बाहर निकालती है. ओके, और ये वर्टिकल ट्यूब होता है, एक ऊर्ध्वाधर नली होती है. ओके, तो बाई अवर चिमेनी इट्स मीन कि हमारी चिमेनी से, हमारी चिमेनी के द्वारा. स्टॉकिंग्स टू इट्स मीन दो मोजे. स्टॉकिंग्स मीन्स टू. ओके, स्टॉकिंग्स मीन्स मोजे, टू मीन्स दो. ओके, बाई अवर चिमेनी स्टॉकिंग्स टू इट्स मीन हमारी चिमेनी से द्वारा दो मोजे. ओके, सेंटा क्लॉज आई हैंग फॉर यू बाई अवर चिमेनी स्टॉकिंग्स टू इट्स मीन सांता क्लॉज मैंने आपके लिए हमारी चिमेनी से या हमारी चिमेनी के द्वारा दो मोजे टांग दिए. ओके, दो मोजे लटका दिए. हैंग मीन्स टांग नहीं है, लटकाना. वन फॉर मी एक मेरे लिए, एंड मीन्स और वन टू गो. ओके, और एक जाने के लिए. वन फॉर मी एंड वन टू गो इट्स मीन कि एक मेरे लिए और एक जाने के लिए. ओके, टू अनदर बॉय आई नो. ओके, टू अनदर बॉय इट्स मीन दूसरे लड़के के लिए. ओके, अनदर मीन्स दूसरा, बॉय मीन्स लड़का, आई नो मैं जानता हूँ. ओके, वन फॉर मी एंड वन टू गो टू अनदर बॉय आई नो इट्स मीन एक मेरे लिए और एक दूसरे लड़के के लिए जाने के लिए है. ओके, जिसे मैं जानता हूँ. ओके, स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ दिस पोम. देयर्स अ चिमेनी इन द टाउन. देयर्स अ चिमेनी इट्स मीन कि वहाँ एक चिमेनी है. ओके, एक चिमेनी में स्टूडेंट्स अ वर्टिकल ट्यूब यूज टू इमिट स्मोक. ओके, धुआं उत्सर्जित करने वाली एक ऊर्ध्वाधर नली. ओके, धुआं उत्सर्जित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक ऊर्ध्वाधर नली को बोलते हैं चिमनी. ओके, जो स्मोक को, धुएं को बाहर निकालता है. इन द टाउन इट्स मीन कि टाउन मीन्स शहर या कस्बा होता है. ओके, तो देयर्स अ चिमनी इन द टाउन इट्स मीन कि शहर में एक चिमनी है. ओके, देयर्स अ चिमनी इन द टाउन इट्स मीन शहर में एक चिमनी है. ओके,
यू हैव नेवर ट्रैवल्ड डाउन, ओके, यू हैव नेवर ट्रैवल्ड इट्स मीन आपने कभी यात्रा नहीं की है, ओके, डाउन मीन्स नीचे, यू हैव नेवर ट्रैवल्ड डाउन इट्स मीन कि आपने कभी यात्रा नहीं की है, ओके, ट्रैवल्ड इट्स मीन कि यात्रा की, ओके, ट्रैवल इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, ट्रैवल्ड मीन्स यात्रा की, क्लियर। शुड यू चांस टू एंटर देयर, ओके, शुड यू चांस इट्स मीन कि आपको चांस देना चाहिए, आपको मौका देना चाहिए, टू एंटर देयर, एंटर मीन्स प्रवेश, देयर मीन्स वहाँ, ओके, शुड यू चांस टू एंटर देयर इट्स मीन कि क्या आपको प्रवेश करने का मौका देना चाहिए, ओके, क्या आपको प्रवेश करने का मौका देना चाहिए, ओके, यू वुड फाइंड अ रूम ऑल वेयर, ओके, यू वुड फाइंड आप पाएंगे, अ मीन्स एक, रूम मीन्स कमरा, ऑल मीन्स पूरा, बेयर मीन्स खाली। स्टूडेंट्स एक ऐसा रूम जो बिल्कुल बेयर हो, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी सामान ना रखा हो, बेड वगैरह कुछ भी ना हो, उसे बोलते हैं बेयर, और रूम मतलब बेयर रूम, ओके, ऑल बेयर रूम इट्स मीन पूरा खाली कमरा, ओके, यू वुड फाइंड अ रूम ऑल बेयर इट्स मीन कि आप एक पूरा खाली कमरा पाएंगे, ओके, आपको एक पूरा खाली कमरा मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। स्टूडेंट लेट्स सी थर्ड नंबर स्टैंड ऑफ दिस पोम, नॉट as talking could you spay matters not how you might try and the shoes you would find are such as no boy would care for much, okay, not as talking could you spay, okay, students here the meaning of spay that spot या see, okay, it's mean स्थान देखना, okay, तो स्टूडेंट्स द मीन ऑफ स्पेस स्पॉट सी इट्स मीन स्थान देखना, ओके, जगह देखना, नॉट एज टॉकिंग कुड यू स्पे इट्स मीन कि मुझे नहीं है आप स्थान देख सकते, ओके, मैटर्स नॉट हाउ यू माइट ट्राई, ओके, तो ये मैटर नहीं करता, ये मायने नहीं रखता है कि आप कैसे कोशिश कर सकते हैं, मैटर्स नॉट, ओके, इट्स मीन मायने नहीं रखता है, हाउ यू माइट ट्राई इट्स मीन कि आप कैसे कोशिश कर सकते हैं, ओके, एंड द शूज़ और जूते यू वुड फाइंड आपको मिलेंगे, आप प्राप्त करेंगे, आर सच, ओके, ऐसे, ओके, एंड द शूज़ यू वुड फाइंड आर सच इट्स मीन और जूते जो आपको मिलेंगे ऐसे हैं, ओके, एंड एज नो बॉय वुड केयर फॉर मच, ओके, एज नो बॉय इट्स मीन कि और मतलब एज नो बॉय मतलब कोई भी लड़का वुड केयर इट्स मीन कि परवाह नहीं करेगा, इट्स या देखभाल नहीं करेगा, ओके, मच मीन्स बहुत अधिक, एज नो बॉय वुड केयर फॉर मच इट्स मीन क्योंकि कोई भी लड़का ज़्यादा परवाह नहीं करेगा, ज़्यादा देखभाल नहीं करेगा, ओके। स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट एंड ऑफ दिस पोम, इन अ ब्रोकन बैड यू वुड सी, ओके, इन अ ब्रोकन बेड इट्स मीन एक टूटे हुए बिस्तर पे, ओके, ब्रोकन मीन्स टूटे हुए, बेड मीन्स बेड या बिस्तर, इन अ ब्रोकन बेड इट्स मीन एक टूटे हुए बेड में, एक टूटे हुए बिस्तर में, यू वुड सी, ओके, आपने देखा, ओके, आप देखेंगे, समवन जस्ट अबाउट लाइक मी, ओके, इट्स मीन कि सिर्फ मेरे जैसा कोई, ओके, ड्रीमिंग ऑफ द प्रीटी टॉयज, ओके, इट्स मीन कि सुंदर खिलौने का सपना देख रहा है, ओके, विच यू ब्रिंग टू अदर बॉयज, ओके, जो आप दूसरे लड़कों के लिए लाते हैं, ओके, एंड टू हिम अ क्रिसमस सीम्स, ओके, एंड टू हिम इट्स मीन कि और उन्हें, ओके, और उसे अ क्रिसमस सीम, एक क्रिसमस सीम्स मीन्स मालूम होता है, प्रतीत होता है, एंड टू हिम अ क्रिसमस सीम्स इट्स मीन कि और उसे क्रिसमस प्रतीत होता है, जब आप उसके लिए किसी दूसरे बॉयज़ के लिए, दूसरे लड़कों के लिए प्रीटी टॉयज लेके आते, सुंदर खिलौने लेके आते, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हाँ क्रिसमस है, ओके, मैरी ओनली इन हिज ड्रीम्स, ओके, मैरी हेयर द मीनिंग ऑफ मैरी दैट आनंदित, ओके, ओनली मीन्स केवल, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसके ड्रीम्स में सपने, मैरी ओनली इन हिज ड्रीम्स इट्स मीन केवल उसके सपनों में आनंदित, ओके। सो स्टूडेंट्स टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड स्टूडेंट्स let's see next end of this poem, all he dreams than Santa Claus, okay, all he dreams, all means सारे या पूरे, he means उसके ड्रीम्स में सपने, all he dreams उसके सारे सपने, उसके सारे मतलब पूरे सपने, ओके, सेंटा क्लॉज दैन मीन्स तब सेंटा क्लॉज, ओके, ऑल ही ड्रीम्स दैन सेंटा क्लॉज इट्स मीन कि वह सब सपने देखता है फिर सेंटा क्लॉज, ओके, स्टफ हिज स्टॉकिंग विथ बिकॉज, ओके, स्टफ हियर द मीन ऑफ स्टफ दैट परिपूर्ण किया, ये पूरा भरा, ओके, हिज इट मीन्स कि उसके स्टॉकिंग इट्स मीन मोजे, विथ मीन्स से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, स्टफ इट स्टॉकिंग विथ बिकॉज इट्स मीन कि फिर क्या होता है कि जब वो सब ड्रीम करता है, ओके, ड्रीमिंग करता है, सपने देखता है, तो फिर क्या होता है कि उसके जो स्टॉकिंग्स होते हैं, उसके जो मोजे होते हैं वो परिपूर्ण कर दिए होते हैं, सेंटा क्लॉज ने पूरे भर दिए होते हैं, ओके, व्हेन इट इज़ फिल्ड अप टू द ब्रीम, ओके, स्टूडेंट्स हियर द मीन ऑफ टू द ब्रीम में स्टूडेंट्स होता है टू द पॉइंट ऑफ बीइंग फुल, ऑलमोस्ट ओवरफ्लोइंग, ओके, इट्स मीन कि पूर्ण होने के बिंदु तक, लगभग अभिप्रवाह, ओके, लगभग अतिप्रवाह, इट्स मीन कि पूरा भर देने को बोलती है टू द ब्रीम, ओके। तो स्टूडेंट्स जब वो ड्रीमिंग करता है तो सेंटा क्लॉज क्या करते हैं, उसके स्टॉक्स में इसके मोजे में मतलब बहुत सारे गिफ्ट रख देते हैं, ओके, इसे पूरा भर देते हैं, ओके,
I shall be Santa Claus to him. It's mean कि मैं उसके लिए Santa Claus बनूंगा. Okay. Isn't the poet of this poem a real Santa Claus is Frank Dempster Salmon. Okay, students, let's read about the poet of this poem, a real Santa Claus. Students, the poet of this poet is Frank Dempster Salmon. And students, Frank Dempster Salmon was born at Peekskill, New York, 1860 to 1916. Okay. तो स्टूडेंट्स ये जो पोइट है, जो कवि है फ्रैंक डेम्प्स्टर सैलमन, ओके, इनका जन्म न्यूयॉर्क के पीक्सकिल में हुआ था, ओके, 1860 में, और इनकी डेथ हुई थी 1916 में. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट. ही वाज प्रोफेसर ऑफ ग्राफिक्स इन कोलंबिया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, तो स्टूडेंट्स, ही मीन्स वे वाज मीन्स से प्रोफेसर, प्राध्यापक ऑफ मीन्स के ग्राफिक्स. स्टूडेंट्स, है द मीनिंग ऑफ ग्राफिक्स दैट चित्रालेख या ग्राफ से चित्र बनाने की कला को बोलते हैं ग्राफिक्स. ओके, इन मीन्स में कोलंबिया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, कोलंबिया स्कूल जो आर्किटेक्चर का स्कूल था उसमें ये प्रोफेसर थे. ओके, ही वाज प्रोफेसर ऑफ ग्राफिक्स इन कोलंबिया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. इट्स मीन कि वह कोलंबिया स्कूल आर्किटेक्चर के, ओके, वह आर्किटेक्चर के कोलंबिया स्कूल में ग्राफिक्स के, इट्स मीन कि चित्रालेख के प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे. ओके, he authored several collection of poems including madrigals and catches 1887 and lyrics for a lute 1890. Okay, students, he means authored, it's mean लेखक थे. Okay, authored, it's mean it's a second form of author. Author means लेखक, authored means लेखक थे. Several means many, कई collections में संग्रह, of means का, poems means कविता, including means अंतर्गत, madrigals and catches 1887 में पब्लिश हुई थी and lyrics for a lute 1890 में पब्लिश हुई थी. Okay, तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइट है फ्रैंक डेम्प्स्टर सैलमन, हमारी पोम आ रियल सेंटा क्लॉज के, तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारी पोम्स की, बहुत सारी कविताओं के लेखक है. ओके, तो स्टूडेंट्स, ही ऑथर्ड सेवरल कलेक्शंस ऑफ पोम्स. ओके, इट्स मीन कि वह बहुत सारी कविताओं के संग्रह के ऑथर है, लेखक है. ओके, और इनके ये जो पोम्स हैं, इनके इंक्लूडेड जो पोम्स है वो हैं मैड्रिगल्स एंड कैचेस. स्टूडेंट्स, मैड्रिगल्स एंड कैचेस इस पब्लिश इन 1887. ओके, 1887 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी. एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर इट लिरिक्स फॉर अ ल्यूट पब्लिश हुई थी 1819 में. ओके, 1890 में, इट्स मीन 1890 में, 1890. क्लियर? सो स्टूडेंट, वी हैव रीड अबाउट पोएट फ्रैंक डेम्प्स्टर सैलमन of this poem, A Real Santa Claus, and I hope you must have understood this poem. You must have understood about the poet. You have no problem in this topic, poem or a poet. Okay, so students, let's see poem which we are going to read and note down in our English literature fan notebook. Okay, students, your poem is Santa Claus I Hang for You by our chimney stockings too. One for me and one to go to another boy I know. There's a chimney in the town you have never traveled down. Should you chance to enter there, you would find a room all bare. Okay, students, the poet of this poem, A Real Santa Claus, is Frank Dempster Salmon. Students, I've already explained the summary of this poem in your English literature book as well as that. So students, I think I have no need explained summary of this poem, A Real Santa Claus, again. Okay, students, let's see hard words of this chapter 5, A Real Santa Claus. Students, hard word, it means cutting sub. Students, your first number hard word is Santa Claus, S-A-N-T-A, Santa, C-L-A-U-S, Claus, Santa Claus, it means Santa Claus. Second number hard word is chimney, C-H-I-M-N-E-Y, chimney. Okay, students, chimney, it means chimney. Okay, स्मोक को बाहर निकालने वाले को बोलते हैं हम चिमनी. ओके, एक वर्टिकल ये ट्यूब होता है, एक ऊर्ध्वाधर एक नली होती है. ओके, अ वर्टिकल ट्यूब यूज टू इमिट स्मोक. ओके, धुआं उत्सर्जित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक ऊर्ध्वाधर नली को बोलते हैं चिमनी. थर्ड नंबर हार्डवर्ड इज स्टॉकिंग, STOCKING, स्टॉकिंग्स, इट्स मीन मोजे. फोर नंबर हार्डवर्ड इज अनदर, NOTGER, अनदर, इट्स मीन दूसरा. ओके, फाइव नंबर हार्डवर्ड इज ट्रैवल, TRAVELLED, इट्स मीन यात्रा की. ओके, सिक्स नंबर हार्डवर्ड इज मैटर्स, METTERS, मैटर, इट्स मीन मायने रखना. ओके, स्टूडेंट्स, और सेवन नंबर हार्डवर्ड इज ब्रोकन, BROKEN, इट्स मीन टूटी हुई. एट नंबर हार्डवर्ड इज समवन, इट्स मीन कोई, SOMEONE, समवन. नाइन नंबर हार्डवर्ड इज ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग, इट्स मीन सपने देख रहा है. 10 number hard word is pretty, PRETTY, it means सुंदर. 11 number hard word is Christmas, CHRISTMAS, Christmas. Christmas, it's a festival of Christians. Okay, students, your 12 number hard word is marry, MERRY, marry, it's mean आनंदित. Students, your 13 number hard word is dreams, DREAMS, dreams means सपने. And students, your 40 number hard word is stuff, STUFF, stuff means students होता है पूरा भरा हुआ. Okay, परिपूर्ण. Students, your last 15 number hard word is bream, BRIM, bream. Okay, so students, we have read these hard words and I hope you must have understood these hard words. And students, here the meaning of bream, that to the point of being full, almost overflowing. Okay, it's mean कि
पूर्ण होने के बिंदु तक लगभग अति प्रवाह. ओके, पूरा भरा हुआ. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, we have read and note down hard words and poem of this chapter 5 in our FAD English Literature notebook, and I hope you must have understood what topic, poem and hard words. You have no problem in any topic, poem and hard words. Okay, so students, today's your classwork is that note down hard words and poem of this chapter 5 are real Santa Claus in your FAD English Literature notebook with your best handwriting. It's your today's classwork. And students, your homework is that learn 8-line poem of this chapter 5 from your FAD English Literature notebook. It's today's homework. And students, I hope you have no problem for learning work, because students, I've explained this poem of this chapter 5 for real Santa Claus. So all students, firstly complete your classwork, note down poem and hard words of this chapter 5 for real Santa Claus in your FAD English Literature notebook with your best handwriting, and send me your work. Thank you.